हेलो 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 1 2 3 4। Ladies and gentlemen, a very welcome. Honorable Lieutenant Governor Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha ji. Our esteemed Chief Guest, Honorable Union Minister of State for Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Srimati Raksha Nikhil Khadse ji. Ladies and gentlemen, a very good evening. Salam, Adab, and Namaskar. A warm welcome to Khelo India Water Sports Festival at the majestic Dal Lake, the Jewel of Kashmir, where history meets nature and tradition meets sportsmanship. This is not just a festival, it is history in making. For the very first time, India is one of the most iconic water body, the Dal Lake, becomes the stage where sports meets culture and unity of 28 states and union territories come together under the banner of Khelo India Water Sports Festival, a moment to strengthen the future of Indian water sports. Dal Lake, often called the mirror of Kashmir, has witnessed emperors, saints, poets, and travelers for centuries. Today, it witnesses athletes, champions, and dreamers carrying forward the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat. For the first time, India witnesses the Khelo India Water Sport Festival, a grand sporting celebration where almost 800 participants from 28 states and union territories have gathered to showcase their strength and passion in rowing, canoeing, and kayaking. In addition to it, there are three demo sports: water skiing, shikara race, and dragon boat race. On behalf of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Sports Authority of India, and Jammu and Kashmir Sports Council, I welcome you all. We are honored to welcome our distinguished guest this evening, esteemed Chief Guest, Honorable Union Minister of State for Youth Affairs and Sports, Government of India, Srimati Raksha Nikhil Khadse ji, esteemed Chief Guest, Honorable Lieutenant Governor Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha ji, esteemed guest of honor, Honorable Chief Minister Jammu and Kashmir, Shri Umar Abdullah ji, and all the other dignitaries present with us on the stage. This festival is not just about competition, but about celebration of India's youth power, its diversity, and the vision of Khelo India, which is to identify, nurture, and empower sporting talent from every corner of the country. Before we begin this festival, let us unite as one nation, one people, one spirit. I request everyone to kindly rise in honor of our national anthem that binds together the dream of 1.4 billion Indians. Thank you so much. Ladies and gentlemen, in the true Kashmiri tradition, we now welcome our esteemed dignitaries with Isban Soz, a symbol of respect, good fortune, and blessings.
Ladies and gentlemen, bouquets and mementos will now be presented to our distinguished guests, a token of gratitude and respect. I request Commissioner Secretary, Youth Services and Sports, Government of Jammu and Kashmir, Shri Sarmad Hafiz ji, to welcome our esteemed Chief Guest, Honorable Union Minister of State for Youth Affairs and Sports, Government of India, Srimati Raksha Nikhil Khadse ji, with a bouquet, and also present a memento with gratitude and respect. A round of applause, ladies and gentlemen. Aapki khoobsurat taaliyan is important for this beautiful moment. Now I request Commissioner Secretary, Youth Services and Sports, Government of Jammu and Kashmir, Shri Sarmad Hafiz ji, to welcome our esteemed Chief Guest, Honorable Lieutenant Governor, Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha ji, with a bouquet, and also present a memento with gratitude and respect. And now I request Commissioner Secretary, Youth Affairs, Services and Sports, Government of Jammu and Kashmir, Shri Samad Hafiz ji, to welcome our esteemed guest of honor, Honorable Chief Minister, Jammu and Kashmir, Shri Umar Abdullah ji, with a bouquet, and also present a memento with gratitude and respect. Now, ladies and gentlemen, I request Secretary, Jammu and Kashmir Sports Council, Srimati Nuzhat Golji, to welcome Honorable Sports Minister of Jammu and Kashmir, Shri Satish Kumar Sharma ji, with a bouquet, and also present a memento with gratitude and respect. Now I request Secretary, Jammu and Kashmir Sports Council, Srimati Nuzhat Golji, to kindly welcome our Honorable Advisor to CM, Chief Minister Sir Janab Nasir Aslam Wani Sahab. Now, ladies and gentlemen, Secretary, Jammu and Kashmir Sports Council, Srimati Nuzhat Golji, will welcome Honorable MLA Zaribal Dal Lake, Shri Tanveer Sadiq ji. Thank you so much, ma'am. Now, moving ahead, ladies and gentlemen, to formally welcome the distinguished guests, may I now invite Honorable Sports Minister, Jammu and Kashmir, Shri Satish Kumar Sharma ji, to deliver the welcome address. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Namaskar, Honorable Union Minister Raksha ji, Honorable Lieutenant Governor Shri Manoj Sinha ji, Honorable Chief Minister Janab Umar Abdullah Sahab, Advisor Shri Nasir Aslam Wani Sahab, Shri Atul Dullu ji, DGP Sahab, Sarmad Sahab, Shri Tanveer Sadiq Sahab, DC Srinagar, DivCom and Director Khelo India Mamta Ojha ji or Nuzhat Gul ji. Very good evening to all of you. It gives me immense pleasure to be here today at the inauguration of this grand Water Sports Festival 2025, a first of its kind in Jammu and Kashmir. This event is not only a celebration of adventure and athleticism, but also an affirmation of our commitment to promoting sports, tourism,
and youth engagement in our region. Water, as we all know, is a source of life and livelihood. Today, through this festival, we are also celebrating its spirit of recreation, competition, and unity. The pristine water bodies of our state are not just natural treasures, but also gateways to opportunities in adventure sports and ecotourism. I'm delighted to see enthusiastic participants, athletes, youths, and visitors from across the country. Their energy and determination truly reflects the strength of our nation's youth. Festivals like this inspire us to adopt healthier lifestyles, encourage teamwork, and instill in us the values of discipline and resilience. At the same time, events such as these highlight the enormous potential of water sports in generating employment, promoting local culture, and attracting tourists. Our government, in collaboration with central government, is fully committed to providing the necessary infrastructure, training facilities, and international level platforms to nurture talent in this sector. I congratulate the organizers, especially Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, and also J&K Sports Council, the local administration, and all the stakeholders for their efforts in making this festival a success. To the participants, I extend my best wishes. Compete with passion, uphold the spirit of sportsmanship, and make this event memorable. Let us together make this Water Sports Festival not just a sporting event, but a movement that connects people, showcases our natural wealth, and promotes the spirit of adventure. Here, I will also like to recall this legacy of Sher-e Kashmir Janab Sheikh Muhammad Abdullah Sahab, who worked selflessly and tirelessly in the development of Jammu and Kashmir. As we know, Sher-e Kashmir dedicated his entire life for the cause of the people. His unwavering struggle for dignity, empowerment, and justice laid the foundation of the modern Jammu and Kashmir. And the place where we are holding this event. Yesterday only young students were appreciating this place, and I just mentioned how the vision of Sher-e Kashmir. And from this platform, I assure you the August gathering, that as per the instructions of Honorable LG Saab and Honorable Chief Minister Saab, Janab Umar Abdullah Saab, it will be our constant endeavor to continue this initiative and ensure it is held in future as well. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. All right, thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, as the Shikara glide and the water sparkle under the evening sky, it is important to remember that Dal Lake is more than just water. It is a way of life. The floating gardens, houseboats, markets, and now the Grand Water Sports Festival prove that Dal Lake is truly alive, with culture, with tradition, and now with the spirit of Khelo India. Now before, has Dal Lake seen such a spectacle with athletes from 28 states and union territories of our country? India come together on waters, not just to compete, but to send a message of unity and strength. This is the vision of Khelo India, to build a sporting culture, to ignite young talent, and to put India on the global map of every sport, including water sports like kayaking, canoeing, and rowing. Now, ladies and gentlemen, it's a breathtaking moment, unique in the festival, the march past on the Shikaras. For the first time, every athlete from 28 states and union territories across India will sail in the Dal Lake, carrying the pride of their states and union territories. Let us cheer for the spirit of unity in diversity as each state and UT makes its way. A huge round of applause, ladies and gentlemen, और गुजारिश करेंगे कि आप सबकी निगाहें हमारे खूबसूरत डल लेक की तरफ जाएं, जहां पर इस यूनिक, fantabulous, breathtaking march past को carry किया जाएगा. We have our first state lined up, and the first state is Andhra Pradesh, also known as the land of Kohinoor coastline and sporting excellence. I request RJ Rafiq to kindly join me in welcoming all the states. All right, so here we are presenting to you. It's an honor to be here, and let's begin this march. And here we are. So turn on all the cameras and your eyes. Here we go. A beautiful moment for 28 states and union territories, as on a single platform in the beautiful, majestic Dal Lake, we have
all the participants from the states and union territories sailing on the beautiful Dal Lake. First of all, we have Andhra Pradesh. Rafiq Bhai, Andhra Pradesh, known for its beautiful coastline areas and sporting excellence. और आज ये अपने उस excellence को लेके कश्मीर आए हैं. So what do you think? Like, how is the experience? And this is the celebration and this is the unity जहाँ पर अलग-अलग athletes आज celebrate कर रहे हैं water sports को यहाँ इस डल झील में. And can we have the music please? क्योंकि ये कहानी म्यूजिक के साथ आज यहाँ पर ब्लेंड होकर के ये खूबसूरत सा रंग जिसे हम देखने के लिए कई मुद्दत से इंतजार कर रहे हैं. And now it's time to celebrate. ये भी बताते चले फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स जहां पर खेला जा रहा है पहली बार डल लेक जम्मू एंड कश्मीर में. And ladies and gentlemen, this is the second Khelo India mega event in Jammu and Kashmir after Khelo India Winter Games held in Gulmarg every year. And जो खूबसूरत सा रंग हम विंटर में देखते थे खेलो इंडिया का आज वो समर में और इस शाम को खूबसूरत गोल्डन आवर और वो शाम जिसमें आप अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं. So we can truly say that from the snow-clad mountains of the serene waters of Dal Lake, Khelo India is bringing all the young athletes from different parts of our country on a single platform. We will be highly thankful to Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Sports Authority of India and Jammu and Kashmir Sports Council for beautifully crafting this wonderful and incredible water sports festival in Dal Lake, Kashmir. Ladies and gentlemen, आपकी तालियां, आपका प्यार, जोरदार तालियों के साथ हमारा पहला स्टेट आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के एथलीट्स पार्टिसिपेंट्स शिकारा में ग्लाइड करते हुए आ रहे हैं और बिल्कुल आंध्र प्रदेश के पीछे आज रफीक भाई we have Andaman and Nicobar Islands where the ocean meets resilience. And that's the beauty जहाँ पर अलग-अलग जगहों का representation young ये एथलीट्स कर रहे हैं and उनकी एनर्जी उनकी वाइब्स को हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं. The young generation with us. And what a beautiful moment. The golden hour is about to start. The sun is setting down and the emerging athletes from different parts of our country are rising up. So that is the combination, that is the beautiful moment. And right behind Andaman and Nicobar Island, we have the team from Assam, known from the land of mighty Brahmaputra and the Golden Fields. We have participants from Assam. You were talking about the golden hour. उसके बगैर भी किसी भी वक्त किसी भी समय आप इस डल झील का कोई भी एंगल लगा लें खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है. ये शानदार है, ये जानदार है और यही रंग आज ये यंग जनरेशन या यंग एथलीट्स आज रंग चढ़ा रहे हैं, डल झील को और खूबसूरत बना रहे हैं. And behind Assam we have the team from Chandigarh. A round of applause from team from Chandigarh. The city beautiful. City. Shining bright in sports. Chandigarh. And we have the team, the incredible athletes from Chhattisgarh. Chhattisgarh also known for the strength from the heart of India. And now, ladies and gentlemen, the capital, the powerhouse of youth and sports, Delhi. The participants from Delhi and rightly said that it is actually the powerhouse of youth and sports. And Delhi की यही खूबसूरत बात, the athletes and the energy we get from Delhi. And वही खूबसूरत से athletes जिनका रंग खेल में भी बहुत खूबसूरत. And then Kemcho, Gujarat. Gujarat, land of progress, culture and champions. Team Gujarat. And after that, we have India's wrestling powerhouse producing medal winners, Haryana. Gliding on the beautiful serene waters of Dal Lake, all the amazing teams representing their states and union territories. Behind Haryana, from the top of Himalayas where strength flows, Himachal Pradesh. The beautiful evening. Khelo India. Actually, a beautiful evening, Rafiq Bhai. Now,
the place which is rich in minerals and is richer in talent. We have Jharkhand enjoying this glide on the Dal Lake, and we must tell that all the participants will be performing in 3 days activities wherein you can see all the action live on DD Sports. Right behind Jharkhand, we have God's own country, a powerhouse in water sports, Kerala. And with that, we have Karnataka. Both the teams are the champions when it comes to water sports. We welcome their athletes to the beautiful lake in Kashmir. And then the energies and the vibrance. And now the place, Rafiq Bhai, which is known for Bollywood, which is known as the financial capital of the country, Maharashtra. Such spectacles happening for the first time in the beautiful valley of Jammu and Kashmir, wherein all the 28 states are participating on a single platform. Right behind Maharashtra, the jewel of the East, shining in Indian sports, Manipur. Wow. Meghalaya crossing. After And that the is energies. Meghalaya, the adobe of clouds, bringing vibrant spirit. And right behind them is the heart of India, the land of endurance, Madhya Pradesh. And ये खूबसूरत सोन रंग, ये सोन अंदाज, ये सोन खूबसूरत वादी, ये कशीर, इसकी होस्ट सोन थी, आज ये जिम्मेदारी की तरफ जो भी ऑडियंस में दोस्त बैठे एक बार जोरदार तालियां तो बजाएं, ये Right. सेलिब्रेशन का मौका And है, now- ये माहौल है. The India's sports capital, proud host of global games, Odisha. And ladies and gentlemen, the land of 5 rivers, strength and courage, Punjab. And right behind Punjab, we have the serene coastal pride of South India, Puducherry. Welcome to the beautiful serene waters. Behind them, we have the desert state with a royal sporting spirit, Rajasthan. And behind them, the land of tradition and emerging champions, Tamil Nadu. And right behind them, Rafiq Bhai, the youngest state with fearless ambition, Telangana. The Devbhoomi, where the mountain inspires strength, Uttarakhand. And now presenting India's largest state, producing legends in sports, Uttar Pradesh. And now, ladies and gentlemen, we are culture, intellect and sports meet. Welcome the team from West Bengal. And the last team, ladies and gentlemen, it's a very wise saying that Gar Firdos Barro is Zamiyast, Hamiyasto, Hamiyasto, Hamiyast. The host, the crown of India, the paradise on earth, embracing all, Jammu and Kashmir. ये खूबसूरत सी टीम एंड ये मार्च पास्ट जम्मू एंड कश्मीर होस्ट टीम के बाद अब आगे बढ़ते हैं इन कहानियों में. अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत सारे अलग अलग रंग जिन्हें हम देखने जा रहे हैं, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. कल्चर की बात है, हमारे आर्ट की बात है, हमारे ट्रेडिशन की बात है, जिसे आज सेलिब्रेट करना है. जिस तरह से ये तमाम एथलीट्स एक्साइटेड हैं, वैसे ही आज हम सब एक्साइटेड हैं. Absolutely right. And बहुत ही खूबसूरत मौका इस समय, और गोल्डन आवर का ये जो इवनिंग टाइम है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. और जब भी ऐसे मौके देखते हैं, देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग फॉर आवर कंट्री. हर बार ये कहते हैं और हर बार इस चीज़ को दोहराते भी हैं. The beautiful country, or
जब मौका मिले तो इस मौके को छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि कुछ खूबसूरत लाइनें यूं लिखी गई हैं कि यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मज़हब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, क्योंकि यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। सो एक बार जोरदार तालियां फॉर आवर वाइब्रेंट इनक्रेडिबल कंट्री इंडिया। So ladies and gentlemen, moving ahead, Dal Lake has always been a canvas for Kashmir's culture, its handicrafts, arts, music and folklore. And today, this festival beautifully brings together sports and culture on one stage, showing the world that Kashmir is not only the land of unmatched beauty, but also a hub of resilience, talent and creativity. Dal Lake is not only a water body, it is a civilization. Today we showcase its unique beauty through a tableau on boats. Dal Lake is not just a water body, it's a civilization. And अलग-अलग रंग जिन्हें हम देख सकते हैं इन टैब्लोज पर। And this beautiful presentation on the tableau of boats. We are highly thankful to Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages for this beautiful, extravagant and enchanting performances wherein we are witnessing a celebration of Kashmiri culture. Kashmiri rope, ये graceful presentation, representation of culture, folk culture from Kashmir. ये खूबसूरत अंदाज हमारा रंग. And this is Band Pöther. Kashmir hunsu अंदाज जिसे इस्तेमाल बातला वांच. हर एक celebration में Band Pöther अपना खूबसूरत रंग जोड़ता है. गोजरी presentation. And a rich culture. The Dogri rich culture. Different cultures and the representations. Khelo India Water Sports Festival. Kashmiri Pandit community representing their art, culture and tradition. We have different dance forms and one with the sticks in hand. Dambali. Dumbbell dance. The representation from this valley in different dance cultures, different patterns of dance forms, and Dumbali dance form that you are witnessing. The golden hour, the celebration, the canvas of colors, and the moves on the waters. Rafiq bhai, this is the incredible advantage we are having, and we are thankful to Khelo India Water Sports Festival for
not only bringing the sportsmanship but also the different varieties of Jammu and Kashmir and the culture of Jammu and Kashmir. As we can see the Kashmiri roof representing the beautiful valley of Kashmir. We can see Gojri and Dogri dances representing the beautiful valley of Pir Panjal. And with the Dambali performance, it is a very old historic dance form, the Dambali dance, wherein you can see our youngsters still taking care of our heritage and tradition. Every Kashmiri wedding or any happy moments are incomplete without Bach Nagma. And then Bach Nagma is the representation. It's happiness, it's culture, it's Kashmir. Ye khoobsurat sa rang, the way the horizon, the sun is crossing the horizon, the colors are crossing your eyes on Dal Lake. And right behind the Bach Nagma performance, we have the incredible art of Kashmir Valley, popularly known as paper mashi. As you can see, a beautiful Kangdi and an artisan sitting on the boat and doing his paper mashi artwork. एक ऐसा खूबसूरत आर्टवर्क जिसने कश्मीर को न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रोशन किया है और एक बहुत बड़ा नाम दिया है. The lake tells the story of Kashmir, tradition flowing seamlessly with modernity. ये खूबसूरत रंग जिसे हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में. और रफीक भाई, डल लेक की बात हो और कलरफुल फ्लावर्स ना दिखें सो ये बिल्कुल सही नहीं था. So right behind the paper mache tableau we have the beautiful flowers and the beautiful colors of Dal Lake for our lovely sitting audience. The way we were talking about the colors and ये है खूबसूरत कश्मीर के रंग. अपने फूलों के रंगों के लिए जाने जाने वाले हमारे ट्यूलिप गार्डन से लेकर गुलमर्ग की कहानियां आज यहाँ आप इस फेस्टिवल में हर वो रंग जो कश्मीर से जुड़ा हुआ है देख सकते हैं. And now, ladies and gentlemen, as the Shikara glides and the water sparkle under the evening sky, and by the fact that Kashmir is known as the paradise on earth and so is its culture, we now present to you the enchanting Kashmiri Rauf dance, a graceful folk dance performed by women during festive occasions like Eid, Diwali, Baisakhi and weddings. With rhythmic claps, flowing movements and melodious songs, Rauf dance reflects the elegance and harmony of Kashmir. Please put your hands together and let's welcome the incredible dancers representing Jammu and Kashmir. एक बार जोरदार तालियां. हमारी इतनी खूबसूरत ऑडियंस बैठी है, तालियां तो जोरदार बनती बनती है. Huge round of applause, ladies and gentlemen, presenting Kashmiri Rauf. रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, गेम बदलते जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग. बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल. जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप.
पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। Absolutely beautiful. ये गोजरी और पहाड़ी का मिक्स, जो जुगलबंदी आपने स्टेज पर देखी, और अलग अलग जगहों का रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग जगहों के कल्चर को आज हम यहाँ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के फेस्टिवल पर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट्स नाइम कि हम कल्चरल परफॉर्मेंसेस के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और जम्मू के फोक रंग को आप तक पहुँचाएं। कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बाद अब जम्मू का फोकलोर आपके सामने पेश किया जाएगा। फ्रॉम द वाइब्रेंट लैंड ऑफ जम्मू, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी ब्रिंग टू यू द डोगरी डांस, known for its energetic rhythm, colorful costumes and joyful celebration of the community. लेकिन हम हमारे मेहमानों से, हमारी ऑडियंस से गुजारिश करेंगे कि इस बार आपकी तालियां जो होंगी वो बहुत ही जोरदार होंगी। एंड लेट्स वेलकम द टैलेंटेड आर्टिस्ट फ्रॉम जम्मू रीजन प्रेजेंटिंग डोगरी डांस एंड जम्मू फोक म्यूजिक। तुम
Wow, that was really beautiful. And ladies and gentlemen, moving ahead, this is the first ever Khelo India Water Sports Festival of India being held in Dal Lake, Jammu and Kashmir. And second Khelo India mega event in Jammu and Kashmir after Khelo India Winter Games held in Gulmarg every year. Indicative of the support that Government of India is extending to Jammu and Kashmir in sports. Government of India has also allocated maximum 100 Khelo India centers to Jammu and Kashmir for the development of sports at grassroots level, and there are many more in the pipeline. Now, ladies and gentlemen, moving ahead, I now invite our esteemed guest of honor, Honorable Chief Minister Jammu and Kashmir, Shri Umar Abdullah Ji, whose leadership has always inspired progress and inclusivity, to share his words to the August gathering. A huge round of applause for our Honorable Chief Minister Jammu and Kashmir, Shri Umar Abdullah Ji. Mohtarma Raksha Nikhil Khadse Saiba, Honorable Union Minister of State for Sports and Youth Affairs, Janab Manoj Sinha Sahab, Honorable Lieutenant Governor Jammu and Kashmir, काबिना में मेरे साथी जनाब सतीश शर्मा साहब, मेरे एडवाइज़र नासिर असलम साहब, हमारे मुकामी एमएलए जनाब तनवीर सादिक साहब, यहाँ पे मौजूद मरकज़ी हुकूमत और जम्मू कश्मीर हुकूमत के तमाम आला अफसरान, यहाँ पे आए हुए 800 खिलाड़ी और उनके साथ उनके टीम के मेंबरान, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, खेलो इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर का एक लंबा वास्ता रहा है। लगातार 5 बार खेलो इंडिया के विंटर गेम्स गुलमर्ग में रखे गए, यहाँ तक कि अब हमसे ये ज़बान पे निकल ही आता है, जब हम खेलो इंडिया कहते हैं तो उसके फ़ौरन बाद विंटर आ जाता है, क्योंकि हमें खेलो इंडिया विंटर की आदत है। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है और इसके लिए मैं मिनिस्टर साहिबा का और इनकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जो पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का यहाँ पे आयोजन किया गया है, इससे बेहतर जगह शायद आपको इन गेम्स के लिए मिल नहीं सकती थी। हमें वैसे भी अपनी इस खूबसूरती पे नाज है और शायद देख के आपको अब पता चल गया होगा कि क्यों। ये खूबसूरत झील के किनारे ऊंचे पहाड़, इस झील पे बदकिस्मती से अभी तक तो वो शिकारे सारे लाइटों से सजे हुए थे। मुझे अफसोस हुआ जब वो यहाँ से चले गए, लेकिन इस झील पे ये शिकारे, ये झील हमारी पहचान है। इस झील के बिना शायद श्रीनगर अधूरा होगा, लेकिन इस झील का इतना ही लंबा वाटर स्पोर्ट्स के साथ रिश्ता है जितना शायद यहाँ लोगों का इस कश्मीर की वादी में बसने का है। शायद ही श्रीनगर का कोई बाशिंदा होगा जिन्होंने इस झील में तैरना नहीं सीखा होगा। मैं खुद उन लोगों में से शामिल हूँ जिन्होंने पहली बार अगर वाटर स्कीइंग की तो इसी झील पे जो 4 हमारे वाटर स्पोर्ट्स के बोट लगते थे, वहाँ से उतर के वाटर स्कीइंग की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने झील क्रॉस किया है स्विमिंग के ज़रिए, उनको डल क्रॉस माना जाता है। वो फ़ख्र से कहते हैं कि आई एम डल क्रॉस। और कुछ उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने न सिर्फ एक बार क्रॉस किया बल्कि हाथ लगा के वापस गए और वो कहते हैं कि आई एम डबल डल क्रॉस। तो वाटर स्पोर्ट्स और डल लेक का जो है एक बहुत पुराना रिश्ता है। उस रिश्ते को एक नया सूरत दिया हुआ है, एक नई रंग
यहाँ पे लगाई गई है इन खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के ज़रिए। मैं जो 800 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने आए हैं उन्हें यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप एक बड़े अच्छे माहौल में एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे। आप शायद थक गए होंगे ये सुनते हुए, लेकिन हम जैसे लोग बार बार आपको इस चीज़ का याद दिलाते हैं कि ओलंपिक्स में भी बार बार ये कहा जाता है कि जीतना अपनी जगह, लेकिन हिस्सा लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मुमकिन है कि सब जो हैं यहाँ से जीत के नहीं जाएंगे, लेकिन आप सब जो हैं इसमें हिस्सा लेंगे और उम्मीद करता हूँ कि जब आप यहाँ से वापस जाएंगे तो ऐसे दोस्ती ऐसे रिश्ते कायम करके जाएंगे जो ज़िंदगी भर आपके काम आएंगे। अगर हमसे कोई कमी हुई, कोई कोताही हुई, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिस तरह विंटर स्पोर्ट्स गुलमर्ग में लगातार 5 साल आपने हमें दिए, अब हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो हमने आपके सामने नज़ारा रखा हुआ है, ये वाटर स्पोर्ट्स भी जो है लगातार आप झील डल पे कराइए और हमें मेहमान नवाजी का मौका देते हुए मैं एक बार फिर आप सबका यहाँ खैर मकदम करते हुए तमाम एथलीट्स को बेस्ट ऑफ लक करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, this festival is a celebration for Kashmir and for the whole nation. The Khelo India Water Sports Festival at Dal Lake is a message that from the snow-clad mountains of Gulmarg to the serene waters of Srinagar, J&K is ready for water sports and all kind of sports and youth empowerment and the national integration. May I now request the esteemed chief guest, our Honorable Lieutenant Governor, Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha ji, whose vision and leadership has transformed Jammu and Kashmir into a center of development and sporting excellence, to address the August gathering. A huge round of applause, ladies and gentlemen, our Honorable Lieutenant Governor, Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha ji. जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला साहब, युवा मामले एवं खेल के भारत सरकार की राज्य मंत्री माननीय श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल सप्लाई मिनिस्टर श्रीमान सतीश शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित महानुभाव, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे 28 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के खिलाड़ी, उनके कोच, मैनेजर्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, देश के सबसे पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में आपके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, आयोजकों, स्पोर्ट्स काउंसिल, भारत सरकार के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर के युवा स्पोर्ट्स लवर, वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े वेटरन्स और यहाँ की आवाम को इन खेलों के आयोजन के लिए दिल से बधाई देता हूँ। मैं भारत सरकार और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिनके कारण ऐतिहासिक शहर श्रीनगर को पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेजबानी का अवसर मिला है। माननीय मंत्री जी का भी मैं श्रीनगर में अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। मैं समझता हूँ हम सबके लिए ये गौरव का क्षण है। मैं अपने सभी अतिथियों को जो देश के कोने कोने से आए हैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, वे जम्मू कश्मीर के आतिथ्य का आनंद लें,
2 कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स काइकिंग, कैनोइंग एवं रोइंग तथा 3 डेमो स्पोर्ट्स वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट रेस और शिकारा स्प्रिंट तथा जम्मू कश्मीर के अद्भुत अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद उठाएं। वैसे सच कहा जाए तो पिछले कुछ हफ्तों से प्रकृति जम्मू कश्मीर की एक बड़ी परीक्षा ले रही है। किश्तवाड़ और कठुआ ने भीषण प्राकृतिक आपदाएं झेली हैं। पीड़ित परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी पीड़ित परिवारों से कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन, सरकार और भारत सरकार आपके पुनर्वास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अगले 2 दिन 22 और 23 अगस्त को हम डल लेक की लहरों पर खेल उत्कृष्टता का जश्न मनाएंगे और उसका सम्मान भी करेंगे। अगले 2 दिन पूरा देश खिलाड़ियों के स्किल, पैशन और इंड्योरेंस के साथ साथ सबसे बढ़कर उनके साहस का भी साक्षी बनेगा। अगले 2 दिन तक चलने वाले कॉम्पिटिटिव खेल देश भर के युवाओं को एक साथ आने, एक ही वातावरण में रहने और एक ही साथ भोजन साझा करने तथा साथ ही खेल उत्कृष्टता के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से compete करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करेंगे। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल मैं मानता हूं कि भारतवर्ष की उस मूल भावना को कायम रखने और उसे रिन्यू करने का है जो सभी लोगों के बीच शांति, समानता और मैत्री को बढ़ावा देना चाहती है। डल के किनारों से अगले 2 दिन यही स्पिरिट देश के हर हिस्से में पहुंचे, ये मेरी कामना है। मुझे कहते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न खेलों को उनका उचित स्थान पिछले 10-11 वर्षों में मिला है। जम्मू कश्मीर उनके प्रयासों का एक जीता जागता उदाहरण है। खासतौर से पीएमडीपी के अंतर्गत जो फंडिंग हुई जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैं कह सकता हूं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक उत्कृष्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पीएमडीपी के तहत हम बना सके और लगभग 20 जिलों में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है जिस पर हमें खुशी है। इंडोर स्टेडियम हो, गाँव में प्ले फील्ड हो, 100 में से 92 खेलो इंडिया सेंटर बन गए हैं। मैं भी 2-3 दिन पहले पता कर रहा था तो किसी में कोर्ट का स्टे था तो कहीं ज़मीन का विवाद था। वो 8 जो सेंटर बचे हैं वो भी जल्दी बन जाएंगे ऐसा मुझे बताया गया है। और इसके कारण एक वाइब्रेंट स्पोर्ट्स इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर में तैयार हुआ है जो यहाँ के युवाओं के संकल्पों और सपनों को साकार कर रहा है। एक व्यापक स्पोर्ट्स कल्चर भी पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में विकसित हुआ है। यहाँ बच्चे हों, युवा हों, हर स्तर पर जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स काउंसिल हो, स्कूल कॉलेज हों या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, खेलने को काफ़ी प्रोत्साहित किया है। पिछले 5-6 वर्षों में जहाँ 3 से 4 लाख लोग स्पोर्ट्स की विभिन्न डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट करते थे, वो बढ़कर के अब 30 से 40 लाख हो गया है। बास्केटबॉल, क्रिकेट, विंटर स्पोर्ट्स के लिए अनेक मॉडर्न स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और कोचिंग की व्यवस्था यहाँ हो सकी है। जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करे और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर का और भारत का नाम रोशन करे। श्रीनगर के नेहरू पार्क में वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की गई है और कठुआ के बनी बसोहली में वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी मोटे तौर पर डेवलप हो गई है। एक अन्य बड़ी उपलब्धि है जिसकी चर्चा कम होती है। अनेक वर्षों बाद अभी 2024 में मैं कहूँ कि एक लंबे अंतराल के बाद लीजेंड लीग क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी कश्मीर घाटी में हुआ था। वह टूर्नामेंट स्वयं इस बात का साक्षी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों बड़े परिवर्तन हुए। 2020 से जम्मू कश्मीर ने अब तक 5 खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी की है। गुलमर्ग भारत के विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में उभर रहा है।
भारत ने इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स, खासकर स्विमिंग और वाटर पोलो में अनेक उल्लेखनीय सफलताएं भी हासिल की हैं, लेकिन ये भी सच है कि वैश्विक स्तर पर हम अपना दबदबा अभी तक नहीं बना पाए हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि वाटर स्पोर्ट्स के विभिन्न डिसिप्लिन में अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। हमें इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स के विभिन्न गेम्स पर अपनी नज़रें टिकानी होंगी। जब तक हम लक्ष्य ऊंचे नहीं रखेंगे, हम कभी भी शिखर को नहीं छू पाएंगे। मैं सभी बच्चों और युवाओं और विशेष रूप से यहाँ भाग लेने वाले वाटर स्पोर्ट्स के सभी नौजवानों से ये आग्रह करूँगा कि इसमें गहरी रुचि लेने की आवश्यकता है। हम इन खेलों में और भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वाटर स्पोर्ट्स टीम भावना का संचार करने का सबसे सशक्त माध्यम है। वाटर स्पोर्ट्स टीम भावना के द्वारा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी हो सकता है और राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। ये सभी युवाओं को एक अवसर प्राप्त होता है। माध्यम है। वाटर स्पोर्ट्स टीम भावना के द्वारा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी हो सकता है और राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। ये सभी युवाओं को एक अवसर प्राप्त होता है। मेरा आप सबसे आग्रह होगा कि जब आप सभी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट की समाप्ति के पश्चात अपने राज्य में या अपने यूटी में, अपनी कम्युनिटी और परिवारों में लौटें, तो आप अपने सभी परिचितों को जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन हुआ है उसे ज़रूर बताइए। जम्मू कश्मीर में अनेक बदलाव हुए हैं और एक युगांतकारी परिवर्तन के दौर से जम्मू कश्मीर गुजरा है। मैं इसकी समृद्धि का इतिहास बड़ा पुराना है। अभी जून में कश्मीर से कन्याकुमारी रेल नेटवर्क से जुड़ने के पश्चात कंप्लीट इंटीग्रेशन के ख्वाब को भी पूरा कर रहा है। आप अपने राज्य वापस जाकर ये अवश्य बताइए कि जम्मू कश्मीर के युवा उसी तरह आज स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं जिस तरह बाकी देश के नौजवान ले रहे हैं, चाहे वो काइकिंग की पैडल हो या बाकी खेल हों। और अपने राज्य वापस जाकर मित्रों और समुदायों के साथियों को अवश्य बताइए कि अब जम्मू कश्मीर में बंद और हड़ताल के कैलेंडर नहीं निकलते, बल्कि खेलो इंडिया गेम्स के कैलेंडर निकाले जाते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आवाज़ स्ट्रीट में नहीं बल्कि स्टेडियम में सुनाई पड़ती है। ये ऐसे बदलाव हैं जिस पर जम्मू कश्मीर और पूरे भारत को गर्व है। राष्ट्र के मुकुटमणि जम्मू कश्मीर में 3 दशक से भी ज़्यादा समय तक बड़ी पीड़ा झेली है। अब एक नया जीवन जी रहा है यहाँ का नौजवान। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर बनकर आप इसकी नई कहानी पूरे देश में पहुँचाएंगे। मैं अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 2 दिन आपको एक साथ काम करने और एक साथ खेलने की भावना को जीना है। मुझे विश्वास है पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से आप एक महान राष्ट्र का हिस्सा होने की भावना का संचार करेंगे। आज डल लेक के किनारे वाटर स्पोर्ट्स का यह महाकुंभ विविधता में एकता की हमारी भावना और उसकी शक्ति का भी प्रतीक है। जीत या हार से अधिक 28 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी, 800 खिलाड़ियों की खेल भावना आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत करेगी। मैं सभी खिलाड़ियों, आयोजकों और प्रशंसकों को अत्यंत सफल और यादगार पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत सरकार के खेल मंत्रालय, खेल मंत्री जी और खेल राज्य मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. बहुत बहुत शुक्रिया. The first Khelo India Water Sport Festival is conducted under the vertical of Sports for Peace and Development. And looking at the participation from 28 states and union territories from across our country, it is a very beautiful platform, and for that we are highly thankful to Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Sports Authority of India and Jammu and Kashmir Sports Council for beautifully crafting this platform and giving an opportunity to the young athletes representing our beautiful, incredible country, India.
Now, with great honor, I invite our esteemed chief guest, Honorable Union Minister of State for Youth Affairs and Sports, Government of India, Srimati Raksha Nikhil Khadse ji. Under her leadership, the ministry has championed initiatives like Khelo India and Fit India, ensuring that sports become a way of life for our youth. Her presence today is a great inspiration. Ladies and gentlemen, let's welcome her with a huge round of applause. आज यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए उपस्थित हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी साहब आदरणीय मनोज सिन्हा जी, हमारे जम्मू कश्मीर के सीएम आदरणीय अमर अब्दुल्ला जी, हमारे जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट मिनिस्टर आदरणीय सतीश शर्मा जी, मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर और सभी देश से आए हुए हमारे सभी एथलीट्स, हमारा सभी खेलो इंडिया का हमारा सभी स्टाफ, स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर के हमारे सभी मेंबर, सबको मेरा नमस्कार। आज इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षीदार बन रहे हैं और पहला नेशनल इवेंट जो हमारा यहाँ पे होने जा रहा है कि वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हम यहाँ पे सबके उपस्थिति में आज हम यहाँ पे उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और मुझे आज खुशी है कि आज मैं जम्मू कश्मीर में आके एक गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि बचपन से हम सुनते थे कि कश्मीर हमारे देश का ताज है, लेकिन आज यहाँ पे इस कश्मीर की सुंदरता देख के आज वो पता चल रहा है कि आज ये ताज हमारा क्यों है। कई बार कश्मीर आने की कोशिश की लेकिन आ नहीं पाई, लेकिन आज ऐसे क्षण पे मैं आई हूँ कि आज इस ऐतिहासिक क्षण के मैं साक्षीदार बन रही हूँ। हम सबको पता है कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन में और हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर आदरणीय मनसुख भाई के नेतृत्व में स्पोर्ट मिनिस्टर ने खेलो भारत नीति की अभी शुरुआत की है कि जिसके माध्यम से हम यही चाहते हैं कि स्पोर्ट्स कल्चर पूरे देश में बढ़े, स्पोर्ट्स टूरिज़्म पूरे देश में बढ़े और जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्थल है कि यहाँ हम पूरे स्पोर्ट टूरिज़्म को अच्छी तरह से हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की सुंदरता और एक अहम जो एक हिस्सा है, जैसे यहाँ पे पहले भी सीएम साहब ने बताया कि कश्मीर विंटर स्पोर्ट्स के नाम पे जाना जाता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एक कैपिटल अभी वाटर स्पोर्ट्स का बन चुका है और उसी तरह वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी हमें इसे कैपिटल बनाना है कि सभी इवेंट वाटर स्पोर्ट्स के जितने भी आने वाले दिनों में होंगे वो यहाँ पे कश्मीर में होने चाहिए और एक स्पोर्ट टूरिज़्म की तरह अगर हम इसे देखें तो काफ़ी अच्छा इसे हम आगे लेके जा सकते हैं और ना कि सिर्फ हमारे देश तक इसे सीमित ना रखते हुए हम इंटरनेशनली इसको स्पोर्ट टूरिज़्म कैसे बना सकते हैं, इसलिए हमें सबको कोशिश करनी है। और खेलो भारत नीति का यही मकसद है कि हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करें और जो मैंने आज यहाँ वास्तव में देखा भी, मैंने आज सुबह जब आई मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी को मैंने विज़िट किया, वहाँ पे खेलो इंडिया के माध्यम से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी हो रहा था। मैंने वहाँ काफ़ी एथलीट से बात भी की और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एथलीट्स यहाँ के काफ़ी खुश थे, उन्हें भी अच्छा लगा कि आज हमारा जो टैलेंट है आज खेलो इंडिया के माध्यम से, आज सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है और हम भी हमारा टैलेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक ले जा सकते हैं और हमारे देश के लिए हम मेडल ला सकते हैं। जब कोई युवा इतने पूरे जोश के साथ जब वो बोलता है तब हमें भी अच्छा लगता है कि आज हमारे देश का युवा स्पोर्ट्स में भी आगे जाने की कोशिश कर रहा है, खास करके जम्मू कश्मीर का युवा। और हमारा यही मकसद है कि इस नीति के माध्यम से हम महिलाओं को भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो आज 50% महिलाओं का सक्षमीकरण हमें करना है और अब सभी सेक्टर में महिलाएं आगे जा रही है, तो स्पोर्ट्स में भी महिलाओं को हमें आगे लेके जाना है। जो महिलाओं का टैलेंट है स्पोर्ट्स के माध्यम से हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी है। नीति में हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स साइंस है उसे भी कैसे हम नरिश कर सकते हैं, क्योंकि आज स्पोर्ट्स साइंस के माध्यम से
आज मेडिकल स्पोर्ट्स मेडिसिन है, फिजियोथेरेपी है, न्यूट्रिशन है, ऐसे काफ़ी सेक्टर है कि जिसमें हम जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और युवाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे आज इस बात की मुझे खुशी हो रही है कि आज इस इवेंट में लगभग 400 से भी ज़्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। 300 से ज़्यादा यहाँ पे सपोर्टिंग स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है। और जो 3 इवेंट है जो हमारे ओलंपिक में हमेशा लिए जाते हैं, जो कायाकिंग है, कैनोइंग है, रोइंग है, कि जिसमें आज नियर अबाउट 24 गोल्ड मेडल के लिए पार्टिसिपेशन हो रहा है यहाँ पे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जितने भी स्टेट से एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ से मेडल लेके जाएंगे। और जिनको मेडल भी नहीं मिला है लेकिन आज एक इतिहास के साक्षीदार वो बन के जा रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर में भारत सरकार और खेल मंत्रालय के माध्यम से हमेशा यही कोशिश जम्मू कश्मीर के लिए की गई है कि खेल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे खेलो इंडिया के सेंटर नियर अबाउट 100 के लगभग यहाँ पे खेलो इंडिया के सेंटर बनाए गए कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम 5 सेंटर यहाँ पे चला रहे। और इसका यही मकसद है कि हम टैलेंट हंट करके इन्हें आगे बढ़ा पाए। और उसी तरह नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस जो बिल पास इस सेशन में हुआ है उसका यही मकसद है सशक्त खिलाड़ियों को हम आगे लेके जा सके, एक अच्छी पॉलिसी के माध्यम से हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सके और उसके साथ ही सशक्त महिला खिलाड़ी भी हम आगे ला सके। और आज खेलो इंडिया के माध्यम से कई अलग अलग वर्टिकल में आज इवेंट हो रहे। खेलो इंडिया विंटर गेम के बारे में आपने सबने देखा यहाँ पे। आज ये खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स है, खेलो इंडिया स्कूल्स गेम है। हर सेक्टर में आज खेलो इंडिया काम कर रहा है और उसका यही मकसद है कि आज के युवाओं में हम खेल के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर पाए, आज के युवाओं की शक्ति एक अच्छी दिशा में हम लेके जाए। और इस देश को विकसित अगर बनाना है तो खेल को भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम खेल को आगे नहीं लेके जाएंगे तब तक हम इस देश को विकसित नहीं बना सकते। और यही कोशिश आदरणीय प्रधानमंत्री जी की खेल के माध्यम से शुरू है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि खेल एक टीम वर्क हमें सिखाता है। खेल के माध्यम से हम हमारी संस्कृति हम एक कर पाते हैं। आज जब जम्मू कश्मीर में ये इवेंट होने जा रहा है तो आज देश भर के सभी खिलाड़ी आज यहाँ पे आए, उन्होंने जम्मू कश्मीर का आज कल्चर देखा, यहाँ के लोग देखे, यहाँ की ब्यूटी देखी। उसी तरह प्रयास यही है कि हर देश का खिलाड़ी हर राज्य में जाके खेले, वहाँ की संस्कृति समझे, वहाँ की भाषा समझे और यूनिटी के साथ हम हमारे देश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएं और इस देश को विकसित करें। यही हमारा मकसद है। इसलिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर को भी स्पोर्ट्स के माध्यम से हम आगे बढ़ाएं। जो आदरणीय यहाँ पे मनोज सिन्हा सर ने कहा, आदरणीय सीएम सर ने कहा, स्पोर्ट्स के लिए पूरी तरह केंद्र सरकार एक्टिव है कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी व्यवस्थाएं की ज़रूरत है हम पूरी कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स मंत्रालय के माध्यम से हमें जल्द से जल्द इसे पूरा करें। जब आज मैं यूनिवर्सिटी को यहाँ मैंने विज़िट किया, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पास है। और जो यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा कि मैडम अगर यहाँ पे हम हॉस्टल रेसिडेंशियल अगर स्पोर्ट्स सेंटर अगर शुरू करते हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा यहाँ के हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को भी हो सकता है। और मैं भी प्रयास करूँगी कि केंद्र सरकार के माध्यम से जो जो नेसेसरी चीज़ें है स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम जम्मू कश्मीर में करेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में हम जब कॉमनवेल्थ की बात करते हैं या 2036 में ओलंपिक की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का नाम भी आगे रहेगा और जम्मू कश्मीर के लोग भी और हमारे सभी एथलीट्स भी मेडल ज़्यादा से ज़्यादा ला पाएंगे। हमारे कंट्री के लिए हमारे सब एथलीट्स खेल पाएगी, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। आज यहाँ के सीएम साहब और मनोज सिन्हा जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। स्पोर्ट्स काउंसिल का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया
और उसके साथ ही हमारे सभी एथलीट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और यहाँ की व्यवस्था करने के लिए खेलो इंडिया हमारे सभी टीम और उसके साथ ही स्टेट के हमारे सब स्पोर्ट्स के ऑफिसर के भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उनके एफर्ट से ये काफ़ी अच्छा फेस्टिवल यहाँ पे होने जा रहा है। और आने वाले 2 दिन में ये फेस्टिवल यहाँ पे चलने वाला है 2 दिन के लिए। और काफ़ी अच्छे एनवायरनमेंट में काफ़ी एक नेचर काफ़ी अच्छे सुंदरता इस नेचर के साथ हम इस इवेंट को यहाँ पे कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार सबके आभार व्यक्त करती हूँ और यहाँ पे मैं रुकती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और जैसा आपने कहा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोशिश के बारे में जब बात हुई तो कोशिश इंसान की बहुत ज़रूरी है। कोशिशें जब करें तो रिजल्ट्स भी हमें वैसे मिलते हैं। सो एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर है मैम कोशिश को लेके, जो हम आपके लिए अर्ज़ करना चाहेंगे कि मंजिल मिल ही जाती है एक दिन, ये कोई मुकद्दर के खेल नहीं होते। मंजिल मिल ही जाती है एक दिन, ये कोई मुकद्दर के खेल नहीं होते। अगर कोशिश ही ना करे इंसान तो कामयाबी से मेल नहीं होते। सो ये कोशिशें हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की, जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, कि इन कोशिशों के बाद जब खेलो इंडिया विंटर गेम्स सक्सेसफुली 5 साल कंटिन्यू देखा गया, एक्सपीरियंस किया गया, और अब खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जहां पे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत देश के 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ एक साथ एक ही मंच पे परफॉर्म कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ऑडियंस को ये भी बताते चलें कि अगले 2 दिन आप ये सारी गेम्स लाइव डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं, जो यहाँ खूबसूरत डल लेक में सारे पार्टिसिपेंट्स आएंगे और परफॉर्म करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं। वी नाउ share with you a very special video message, and this video message is from our Honorable Union Minister for Youth Affairs and Sports, Government of India, Dr. Mansukh Mandavia ji, extending his blessings and best wishes for this historic festival, Khelo India Water Sports Festival at Dal Lake, Srinagar. Can we have the video message, please? नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों। यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मैं आप सभी का प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्वागत कर रहा हूं। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना रहा कि खेलों की संस्कृति को देश के हर कोने तक पहुंचाया जाए। आज कश्मीर की डाल झील में जब खिलाड़ी उमंग और उत्साह के साथ इतिहास रचने उतरेंगे तो यह दृश्य न केवल आप सभी स्पोर्ट्स प्रेमियों को रोमांचित करेगा, बल्कि वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की सशक्त तस्वीर भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। इस वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव में 800 एथलीट्स और सहयोगी स्टाफ भाग ले रहे हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम में हम महिलाओं की भागीदारी को विशेष प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे गर्व है कि इस महोत्सव में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी भी समान संख्या में है। साथियों, 2014 में जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में आई, उसी समय से हम देश को ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाने की दिशा में काम करने को लेकर बहुत स्पष्ट थे। खेलो इंडिया गेम्स के तहत हमने देश भर में अलग अलग खेल आयोजन शुरू किए। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पारा गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स के बाद अब वाटर स्पोर्ट्स के साथ हम और आगे बढ़ रहे हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स के तहत
हमारे टैलेंटेड प्लेयर्स की पहचान की जाती है और फिर हम उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड की बेस्ट स्पोर्टिंग फैसिलिटी एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। आज इसी विजन के कारण इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स में पहले से ज़्यादा मेडल हमारे खिलाड़ियों जीत रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं साथियों, खेलो भारत नीति के जरिए हम स्पोर्ट्स को देश का कल्चर बनाना चाहते हैं। हर घर खेल, घर घर खेल का ध्येय लेकर हमारी सरकार पिछले 11 सालों से लगातार इस दिशा में काम कर रही है। अभी पिछले ही हफ्ते संसद में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 पारित हुआ है। इसके जरिए अब स्पोर्ट्स के साथ स्पोर्ट्स गवर्नेंस में भी हम हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि जब हमारे देश 2027 ओलंपिक्स की मेजबानी करे तब भारत शीर्ष 10 पदक विजेता देशों में शामिल हो और 2047 तक विश्व की शीर्ष 5 खेल महाशक्तियों में स्थान बनाए। साथियों, यह खेल सिर्फ हमारे खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के भाइयों और बहनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार के प्रयासों से विकास की धारा जम्मू कश्मीर में लगातार बह रही है और आगे भी बहती रहेगी। तिरंगे की शान और जम्मू कश्मीर का उज्जवल भविष्य हमारी साझा प्रतिबद्धता है। आप सभी युवा खिलाड़ियों को एक बार फिर मैं इस खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी देश के गौरव को स्पोर्टिंग स्पिरिट के साथ ऐसे ही बनाए रखिए, ऐसी मेरी कामना रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आई डिक्लेयर द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ओपन। जय हिंद। Ladies and gentlemen, as we look ahead, Khelo India is not just a program, it is a revolution, providing world-class infrastructure, scholarships, and opportunities to the young athletes of our country. And what a better way to showcase its journey than here on Dal Lake, with a spectacular laser show. With this amazing and incredible laser show, we will take you to a very different, vibrant, wherein technology meets nature and technology meets sportsmanship. So get ready for a spectacular moment. For the first time ever at a Khelo India event, Dal Lake becomes a canvas for water sports festival. Now, ladies and gentlemen, we have a spectacular presentation
showcasing the journey of Khelo India initiatives on the water screen, happening for the first time at a Khelo India event. The official logo of Khelo India Water Sports Festival on the water screen. Different sporting initiatives under Khelo India. Wonderful presentation. And may we request our lovely audience for a round of applause for this incredible presentation for the first time presenting on the water screen. Friends, we witnessed tonight what was not just an event but a historic beginning. The first Khelo India Water Sports Festival at Dal Lake has set the tone for the future of water sports in India. Dal Lake, which had always been a symbol of Kashmir's soul, will now also be remembered as the birthplace of a new sporting era. As the waters of Dal Lake embrace this moment, let us carry forward the spirit of unity, culture and sportsmanship. On behalf of the Ministry of Youth Affairs, Government of India and Sports Authority of India with Jammu and Kashmir Sports Council, I thank our esteemed chief guests, guests of honor, our dignitaries, athletes, artists, and each one of you for being a part of this unforgettable evening. To conclude this glorious evening, may I request everyone to kindly rise once again for the national anthem. Start.
Thank you so much. रफ्तार है तेरी लगती